Hello, Aquarius people. Welcome to my love reading. It's a reading about your love life based on lovers, love relationship, partnership. If you're having or facing any kind of obstacles, even that will also be covered in this reading. Okay, so it's a bi-monthly reading, Aquarius. You can, that is from 15th of September to 30th of September. You can watch it as a sun sign, moon sign, rising sign and Venus sign. Since Venus is the planet of love and goddess of love, it is given importance in this reading. And one more thing, I have divided this reading into two sections, one for you, one for your partner. So if this side is yours, this side could be your partner. If this side is your partner, then this side could be yours. So take it as it resonates. What you need to do is just flip the energies, since in this kind of reading, two people are involved. So this kind of reading, such things do happen. Energies can flip. So whatever resonates with you, just take that. Rest, you need not worry or bother. Okay, don't unnecessarily try to fit a different story into your love story. Okay, so take what resonates. Okay, I'll be using 4 multiple oracle decks for this reading. Lovers oracle deck, romance angels oracle deck, true emotions oracle deck, and fairies oracle deck. Okay, so let's start with your reading, Capricorn. Universe, please, sorry, Capricorn, no, not Capricorn, it's Aquarius. Universe, please guide the Aquarius people. Please guide the Aquarius people and their partner in their respective love life. Please guide the Aquarius people and their partner in their respective love life. Let them know what they need to know. Okay. Let's start with your reading, Aquarius. Okay. The first card says friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. If you have a very serious kind of relationship, Aquarius, then friendship, do cultivate this particular thing in your bond. Cultivate friendship in your bond. Nurture the bonds of friendship, because friendship कोई भी relationship का foundation होता है. कोई भी relationship आप ले लो, उसमें friendship foundation होता है. Friendship ज़रूरी है, because that is the base layer of any friendship, any relationship. It is the base layer. Okay, so nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. If you don't have such a kind of bond with your partner, then do practice developing friendship. Spend some fun time together, you know. एक दूसरे के साथ खुल के बात कीजिए, शेयर कीजिए सब कुछ छुपा के मत रखिए. Just be like friends, you know. दो दोस्त कैसे होते हैं सोचिए, इमेजिन कीजिए. सिर्फ लवर या फिर हस्बैंड वाइफ, रोल्स वही है, लेकिन उस रोल्स का कुछ अस्तित्व है, एसेंस है ना, कुछ डेफिनेशन है. तो ये फ्रेंडशिप उस डेफिनेशन में आता है, since it's the base layer of any damn relationship. Okay, let's see what the angel has in store for you. Forgiving and learning. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments.
if you're facing any kind of such issues where you need to forgive your own self and to your partner, सामने वाले को भी अगर forgive करना हो तो please forgive, क्योंकि forgive करने से you will get your peace back, शांति वापस मिलेगी। जब तक आप इसे पकड़ के रखेंगे, कोई मुद्दे को, कोई सिचुएशन को ग्रिप में रखेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। शांति चीज़ ही ऐसी है। लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, लर्न टू फॉरगिव। अगर आपसे कुछ फॉल्ट हुआ हो तो खुद को फॉरगिव कीजिए। अगर आपके पार्टनर से कुछ फॉल्ट हुआ हो तो अपने पार्टनर को फॉरगिव कीजिए। लर्न टू फॉरगिव एंड मूव ऑन। एज यू रिलीज, तभी हीलिंग पॉसिबल है। अगर फॉरगिव नहीं करेंगे, फॉरगिव इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग, Forgiveness is the first step of healing. It's the truth, it's a fact. As you release and heal the past, past को पकड़ के मत रखिए, उसे रिलीज कीजिए, हील होने दीजिए अपने आप को। And for that, you need to learn from your mistakes. You need to forgive either yourself or your partner. जैसा आपका सिचुएशन होगा उस हिसाब से आप देखो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है सब एक्वेरियस के लिए, तो हर एक सिचुएशन हर एक एक्वेरियस के साथ मैच नहीं करेगा, रेजोनेट नहीं करेगा। इट कुड बी डिफरेंट स्टोरीज फॉर डिफरेंट एक्वेरियंस। ओके, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ योर ओन लाइफ। As you release and heal the past, you experience more love in your present moment, certainly. This was the guidance from the angel. Let's see the next card. Healing. See, यहाँ पे भी healing की बात आई है. Even this card says so. Healing. ऐसा कुछ चल रहा है आपके जीवन में जिसके लिए आपको healing की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. You need healing very much. Imagine both you and your partner, because it's about your relationship. Relationship एक जने से तो बनता नहीं है, दो जन लगता है एक लव रिलेशनशिप को बनाने में, एक बॉन्ड को बनाने में, क्रिएट करने में, है ना। तो हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवेड सराउंडेड बाय लाइट। डिवाइन लाइट से आप लोग सराउंडेड है, ऐसा आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए, पिक्चराइज कीजिए, सोचिए, मन ही मन में दिमाग में सोचिए, तभी वैसे वाइब्रेशंस आपको मिलेगा डिवाइन से, आपके मन से, आपके दिमाग से वैसा वाइब्रेशन क्रिएट होगा फिर, और आप हील कर पाएंगे एक दूसरे को, अपने आप को भी और अपने पार्टनर को भी। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। जब सोच रहे तभी सोचिए कि आप लोग हील हो रहे, आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है। This is how healing should be done. The angel guidance says finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Aquarius people, highly possible, since this card has come out, it could be with quite a few Aquarians that you're facing some kind of financial issues or career issues. कुछ एक्वेरियंस के साथ शायद ऐसा हो रहा होगा. This could be the reason. Finances and career issues. Financial issues are a factor in your love life right now. If it is so, देखिए कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मिडिल ग्राउंड ला सकते हैं, सल्यूशन निकाल सकते हैं प्रॉब्लम का. प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए, सल्यूशन पे फोकस कीजिए. कैसे सल्यूशन निकाल सकते हैं, बैठिए एक दूसरे के साथ बात कीजिए, सल्यूशन निकालिए, ढूंढिए, क्योंकि हम लोग का रिलेशनशिप बहुत चीज़ों से अफेक्टेड होता है. किसी का फाइनेंस होगा, किसी का करियर होगा, किसी का कंट्रोल इश्यूज होगा, किसी का डिसेप्शन होगा, बहुत कुछ हो सकता है. अप्स एंड डाउन्स चलता है, लेकिन बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, और उसके लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है, हीलिंग ज़रूरी है,
पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एफर्मेशन ज़रूरी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैनिफेस्टेशन के ऊपर, पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर वीडियोस है, प्लीज़ उसे देखें, उसे रेफ़र करें, उससे ज्ञान लीजिए, नॉलेज बढ़ाइए अपना, और अपनी लाइफ में, लव लाइफ में उसे अप्लाई कीजिए। लाइफ इन जनरल एंड योर लव लाइफ बोथ, and make your love life a better one. Improve your love life and your life in general. Moving on to the next card, Aquarians. It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. अगर आप खुद हील्ड नहीं हैं तो अपने पार्टनर को भी आप हील नहीं कर पाएंगे। आपका रिलेशनशिप भी हील्ड नहीं होगा। इसीलिए पहले खुद को हील कीजिए। हीलिंग, टेक अ स्टेप बैक। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टेप बैक राइट नाउ एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। खुद को वक्त दीजिए, मी टाइम निकालिए। प्रॉब्लम्स हर एक के ज़िंदगी में आता है, लेकिन उससे ठीक करना है, उसका सल्यूशन ढूंढना है, isn't it? स्टेप बैक, दूर से देखिए चीज़ को, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, पिक्चर और क्लियर नज़र आएगा। सामने जाके देखेंगे तो पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आएगा, समझने में प्रॉब्लम होगा। पिक्चर से पीछे आ जाइए, टेक अ स्टेप बैक, दूर से देखिए, दूर से ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। अपना नज़रिया, अपना पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए। Instead of placing your focus on another, now is the time to give it to yourself. So heal yourself first, then try to heal your partner or your relationship. पहले खुद को हील कीजिए। अगर खुद ही हील्ड नहीं है तो फिर दूसरों को कैसे हील करेंगे, isn't it? Let's see what the angel has to say. New love. A new person has stirred your romantic feelings. New love हो सकता है एक्यूरियस, किसी एक्यूरियस के जीवन में शायद न्यू लव एंट्री किया हो या एंट्री लिया हो। इट्स हाईली पॉसिबल, क्योंकि सब एक्यूरियंस का स्टोरी तो एक जैसे नहीं होगा। कुछ एक्यूरियंस के लाइफ में शायद न्यू लाइफ एंटर कर चुका या फिर एंटर करने वाला है। This is what is being guided by the universe and angels. A new person has stirred your romantic feelings. आपके दिल में कुछ हलचल मचाया है उन्होंने, isn't it? That is what is being said in this card, my dear Aquarius. Okay, moving on to this side of the card. Secret admirer. See, highly related, these two cards. या तो आप एडमायर करते हैं सीक्रेटली उसे, या फिर वो बंदा या वो बंदी, वो इंसान आपको एडमायर करता है सीक्रेटली। दोनों में से कुछ तो होगा। सीक्रेट एडमायरर. समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। बयान नहीं कर रहे आप, या फिर वो इंसान बयान नहीं कर रहा है, लेकिन मन ही मन में पसंद करता है, चाहता है आपको, या फिर आप चाहते हैं उनको। Let's see what the angel has to say. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Can you see the relation between these two cards? Secret admirer का कार्ड आया है, but angels are telling you कि secret admiration बहुत हो गया। अब सामने जाके एक्सप्रेस कीजिए अपना लव, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, उस इंसान तक पहुंचाइए अपने फीलिंग्स को। एक्सप्रेस योर लव, बिकॉज एक्सप्रेशन इज सर्टेनली नेसेसरी।
एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। Go ahead and make the romantic gesture. Moving on to the next card, Aquarius. Sacred union. Sacred union. Honor and treasure your relationship, for it is truly a sacred one. Certainly, you should honor your relationship. You should respect your partner. You should respect your relationship. You should honor your partner. You should honor your relationship. You should honor your own self, because your union is sacred. प्यार sacred होता है, holy होता है। ये कोई मामूली खेल नहीं है। Isn't it? प्यार में बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आता है प्यार में। The angels are saying, stay optimistic about your love life. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Certainly. मैंने अभी कहा था पॉजिटिव एफर्मेशन के बारे में मेरे यूट्यूब चैनल पे, डिवाइन ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे वीडियोस है, मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियोस है, कैसे आप थॉट से रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वास्तव में जो लाते हैं थॉट से, डिज़ायर से, विशेस से फुलफिल करते हैं वास्तव में, उसी को हम लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो उसके ऊपर वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप प्लीज़ उसे रेफ़र करें, उससे कुछ सीखिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए अपना, और अपने जीवन में उसे अप्लाई कीजिए टू एनहांस एंड बेटर योर लव लाइफ और लाइफ इन जनरल। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. यहाँ पे हीलिंग की बात आई थी। अगर आप कोई नेगेटिव सिचुएशन वाकई में फेस कर रहे हैं, बीट फॉर फाइनेंसेस और कुछ अलग मुद्दा हो, क्योंकि सब एक्यूरियंस के साथ एक जैसा नहीं होगा, इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, इट विल वेरी फ्रॉम एक्यूरियस टू एक्यूरियस। जिसका जैसा स्टोरी है आप प्लीज़ उस हिसाब से लें और उस हिसाब से चेंजेस करें अपने लव लाइफ में। सो पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सर्टनली थिंक पॉजिटिवली, चाहे कोई भी मुद्दा हो लाइफ में, पॉजिटिव थिंकिंग इज एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ थिंकिंग। इट्स मैंडेटरी। नेगेटिवली क्यों सोचेंगे आप, ये सवाल कीजिए खुद से कि क्यों मैं नेगेटिवली सोचूंगा या सोचूंगी। व्हेन आई हैव द पावर टू थिंक पॉजिटिवली, आई डू हैव द पावर टू चूज़ माई थाट्स। ये जानिए, थाट्स आप चूज़ कर सकते हैं। बी वाइज इनफ टू चूज़ योर थाट्स। नेगेटिव थाट्स को चूज़ मत कीजिए। ऐसा करते करते हैबिट बन जाएगा, फिर आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव थाट्स ही आएगा। दिस इज द पैटर्न हाउ आवर माइंड वर्क्स। And Aquarians are mental people. You should be knowing very well how the mind works. So, positive thinking and faith will bring you romance. Stay optimistic about your love life. Don't be pessimistic. Don't think negatively. It will bring you no good. तो सोच के फिर क्या फ़ायदा नेगेटिवली सोच के। अगर सोचना ही है तो पॉजिटिवली सोचिए, ऑप्टिमिस्टिक वे में सोचिए, ऑप्टिमिस्टिक रह के सोचिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। देखिए, मैंने अभी मैनिफेस्टेशन की बात की। मैनिफेस्टेशन क्या होता है वो मैंने बोला अभी। जो थॉट से, डिज़ायर से या फिर विशेस से हम लोग फुलफिल करते हैं, रियलिटी में वास्तव में जो लाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसे हम लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। सो योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। स्पिरिट में वो आपके साथ ऑलरेडी है। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं फिजिकली, इन द फिजिकल फॉर्म, देन
You have to apply the manifestation techniques. पॉजिटिव थॉट्स, इसीलिए देखिए पॉजिटिव थॉट्स आया है. स्टे ऑप्टिमिस्टिक. मे भी हो सकता है आप पेसिमिस्टिक रह रहे कि आपके जीवन में कोई सोलमेट नहीं है. क्यूरियस पीपल, मे बी योर थिंकिंग इज गोइंग ऑन दिस वे, यू नो. सो चेंज योर थिंकिंग. Manifest your soulmate. He or she is already there in the spirit form. Only thing is that you have to manifest it in a physical form. क्योंकि सोलमेट बॉन्ड बहुत डीप बॉन्ड होता है. So stay optimistic and do the necessary changes. Manifest through your positive affirmation. Moving on to the next card, it says, card of angels guidance says, attraction. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Attraction कैसे करेंगे? अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? मैनिफेस्ट करके, पॉजिटिव एफर्मेशन करके, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, ऑप्टिमिस्टिक रह के, तभी तो अट्रैक्शन होगा. लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, आपने सुना ही होगा. तो जैसा आपका सोच होगा, जैसा आपका विचार होगा, जैसा आपका एनर्जी और उसका वाइब्रेशन होगा, उसी टाइप का वाइब्रेशन आपको वापस मिलेगा रिटर्न में यूनिवर्स की तरफ से. सो बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू थिंक. डोंट थिंक नेगेटिवली. Create positive thoughts. You have the power to create, my dear. Empower yourself, empower your mind, empower your thinking. Thought process को empower कीजिए. तब देखिए मैनिफेस्टेशन कैसे पॉसिबल है और कैसे इजी है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द कार्ड ऑफ deck of true emotions oracle deck. I'm using 4 oracle decks in this reading, curious people. Universe, please guide the curious people and their partners in their respective love lives. Please guide the curious people and their partners in their respective love life, universe. Please let them know what they need to know. Please let them know what they need to know. I'll pick up one card from this deck. And next deck will be of Fairies Oracle deck in the form of guidance. Universe, please guide the curious people and their partners in their respective love lives. Let them know what they need to know. What changes do they need to bring to enhance and better their love life. One card from this deck. Okay. So True Emotions card says, let's spend some time together. Let's spend some time together. How beautiful. एक साथ वक्त बिताइए. अगर हील्ड नहीं है तो पहले खुद को हील कीजिए, फिर अपने पार्टनर को हील होने में, हील करने में मदद कीजिए. एक साथ टाइम बिताइए. फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड डेवलप कीजिए जैसा आया था पहले. बिकॉज योर यूनियन इज सेक्रेड. ओके, प्यार में एक साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है.
फैमिलीज, बच्चे, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ रहता है, सब कुछ चलता है, लेकिन प्यार के लिए भी वक्त निकालिए. स्पेंड सम टाइम टुगेदर. अपने पार्टनर के लिए वक्त निकालिए, बहुत ज़रूरी है. तभी तो प्यार बढ़ेगा, तभी बॉन्ड डीप होगा, मीनिंगफुल होगा. Okay, Aquarius people. Well, the fairy says, shine from within. Shine from within. Looks are only skin deep. True beauty shines from within. So true. And it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. Shine from within. Because looks are only skin deep. सिर्फ चेहरे पे मत जाइए, फिजिकल अट्रैक्शन पे मत जाइए. प्यार सिर्फ इन सब चीज़ों से नहीं होता है. खोखला, तब वो प्यार ही नहीं है, तब तो पूरा खोखला है रिश्ता. इमोशनल मैच देखिए, मेंटल मैच देखिए, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है कि नहीं, ये सब देखिए. यही सही मायने है प्यार का. बॉडी एक दिन नहीं रहेगा, जो रह जाएगा वो है आत्मा, मेमोरीज, टाइम स्पेंड विथ योर लव्ड वंस. यही आप लेके वापस जाओगे, बॉडी लेके वापस नहीं जाओगे. सो लुक्स आर ओनली स्किन डीप. ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन, my dear Aquarius. This is a time for self-acceptance and for reveal your true beauty. खुद को एक्सेप्ट कीजिए. Acceptance is very powerful. ऑटोमेटिकली हील करने में मदद करता है. यहाँ पे हीलिंग की बात आई थी. ऑटोमेटिक हील करने में मदद करता है. So shine from within, Aquarius people. Shine from within. Okay? सिर्फ ऊपरी शाइन नहीं, शाइन फ्रॉम विद इन, अंदर से इवॉल्व, एम्पावर योर सेल्फ. तो ये शाइन खुद ब खुद चेहरे पे आएगा, नूर. Okay? Okay, fine, Aquarius people. This was all about your reading. Hope you liked it and enjoyed it. Do subscribe to my channel in order to get further notifications. Hit the bell icon. Wish you all the best for your love life. Stay positive and optimistic. Bring some positive changes in your love life, whatever is needed. Okay, so see you in my next reading. Till then, take care. Bye bye. Have a good time.